اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہی ہوں اور یہ انشاءاللہ یہ آگے چلتا رہے گا، کافی بڑا ہے اور میں آگے بھی اپنی ویڈیو میں اور انبیاء اور پیغمبر اور اولیاء کرام جو بھی ہیں پروردگار کے واقعے اور اللہ کے رسول کے واقعے میں بیان کرتی رہوں گی، تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں۔ تو میں اب شروع ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور مستعمل تھے۔ سورہ توبہ 114/9۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملیں گے تو آزر کے چہرے پر گرد غبار اور سیاہی ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ وہ کہے گے کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ رحمت سے دور جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا جائے گا، ابراہیم آپ کے قدموں میں کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو نجاست میں لتڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظام کائنات میں غور و تدبر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مظاہر قدرت دکھا کر ایمان و یقین کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا کہ آپ اپنی امت کو دعوت توحید پر زور طریقے اور دلائل کی روشنی میں دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَازَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُعَاذُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ
आकु बिल अम्न इन कुंतुम तालमून अल्लज़ीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून वतिल्का उज़्ज़ातुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी नरफ़अु दराजातिम मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। और हमने इसी तरह इब्राहिम को आसमानों और ज़मीन की अजायबात दिखलाए ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाएं। यानी जब रात ने इनको पर्दा तारीकी से ढांप लिया तो उन्हें आसमान में एक सितारा नज़र आया। वो कहने लगे कि ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले पसंद नहीं। फिर जब चाँद देखा तो चमक रहा है तो कहने लगे कि ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं इन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे कि ये मेरा परवरदिगार है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे कि लोगों, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। मैंने सबसे यकसब होकर अपने आप को उसी ज़ात की तरफ मतवज्जह किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और उनकी कौम से बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो, इसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और इन जिन चीज़ों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उससे नहीं डरता। हाँ, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं करते भला मैं इन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इससे नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीक़ों में से कौन सा फरीक अमन और जमायत खातिर का मुस्तहिक है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिरक के जुल्म से मखलूत नहीं किया, और इनके लिए अमन और जमायत खातिर है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसको के चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना और खूब इल्म वाला है। सूरह इनाम 83-75/6। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के दरमियान मुनाज़रे का ज़िक्र किया है। आपने वाज़ेह फरमाया है कि रोशन सितारों की सूरत में नज़र आने वाले इजराम फल की माबूद होने के लायक नहीं। अल्लाह के साथ इनकी इबादत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मखलूक हैं जिन्हें देखभाल की ज़रूरत है। वो खालिक के बनाए हुए और इसके हुक्म की ताबे हैं। कभी तलू होते हैं तो कभी गुरूब होकर नज़रों से ओझल हो जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं। वो अज़ली और अब्दी है, इसके साथ और कोई माबूद नहीं। सबसे पहले आपने ये वाज़ेह किया कि सितारे ये सलाहियत नहीं रखते। इसके बाद आपने चाँद का ज़िक्र फरमाया जो सितारों से ज़्यादा रोशन और ज़्यादा खूबसूरत है, और आखिर में सूरज का ज़िक्र फरमाया जो नज़र आने वाले इजराम फलकी में सबसे ज़्यादा रोशन और ख़ूबसूरत है। वाज़ेह किया कि ये सब किसी के हुक्म के का ताबिया और मस्खर हैं, जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमिन आयातिही हिल्लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वलकमर ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमारी
वस्जुदू लिल्लाहि लिल्लाहिल्लज़ी खलक़ाहुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। और रात और दिन और सूरज और चाँद उनकी निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज को सिजदा करो और ना चाँद को, बल्कि अल्लाह ही को सिजदा करो जिसने इन चीज़ों को पैदा किया है। अगर तुम्हें इसी की इबादत मंजूर हो तो सूरह हाम मस्जिद 37/41 इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा रअ अश-शम्सा बाज़िगातन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत क़ाला या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून इन्नी वज़अतु वज़िया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ा हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन वहज़्ज़ा क़ौमु क़ाला तुहज़्ज़ूनी इल्लाहि वक़ाला हदान वला अख़ाफ़ु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैआ। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो इससे मैं बेजार हूँ। मैंने सबसे यकसवा होकर अपने आप को इसी ज़ात की तरफ मुतवज्जा किया है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों से नहीं। और इनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो, इसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। और जिन चीज़ों को तुम इसका शरीक बनाते हो इनमें से नहीं डरता, हाँ जो मेरा परवरदिगार को चाहे। सूरह इनाम 80-78/6। मतलब यह है कि मैं इन नाम नेहाद माबूदों से नहीं डरता जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। ये किसी का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, ना सुन सकते हैं और ना समझ रखते हैं, बल्कि वो या तो सितारों वगैरह की तरह रबूबियत की मोहताज और हुक्म के पाबंद हैं, या हाथों से घड़े और तराश कर बनाई हुई मूर्तियां हैं। बुत परस्तों से मुनाजरा और दावत गौर फिक्र के लिए शानदार तदबीर। अहले बाबिल बुतों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से बुत परस्ती के बारे में मुनाजरा किया था और मजूसमों को तोड़ फोड़ कर और इनकी तहकीर व तजलील करके इनका बातिल होना वाज़िह फरमाया था। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाला इन्नमा तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औशाना मवद्दता बैनिकुम फ़िल हयातिद दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामति यकफ़ुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन व यलअनु बाज़ुकुम बाज़म वमा वाकुमुन नारु वमा लकुम मिनन नासिरीन। और इब्राहीम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुत को ले बैठे हो तो दुनिया की ज़िंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे की दोस्ती से इनकार करोगे और दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और तुम्हारी मददगार कोई ना होगा। सूरह अनकबूत 25/29। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तों को दावत गौर फिक्र देने के लिए एक ज़बरदस्त तदबीर की, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह अनबिया में फरमाया। इरशाद बारी ताला है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाला लिअबीही व क़ौमिही व हाज़िहि तमाशीलुल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून क़ालू वजदना आबाना लहा आबिदीन क़ाला लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम